Hello everyone. Today we are going to see about CA Foundation, Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. This is an introductory lecture. So just an introduction of mathematics and few basic concepts we will cover today. Okay. So before starting, let me introduce myself. I am CA Rajgopal Sanghi. I am basically from Nagpur. I have cleared many courses after becoming CA like DISA, which is Diploma in Information System Audits, FAFD, that is Forensic Audit and Fraud Detection, CBA, that is Concurrent Bank Branch Auditor, and I am also a Bachelor of Commerce. I have been teaching since 2011, so roughly I have 10 years of experience in teaching. I have taught at many places in all over India, like I am from Nagpur, so I am teaching in Nagpur, Mumbai, Pune, Hyderabad, Mount Abu, and so on. Also, I am a practicing chartered accountant. I have a vast experience in the field of corporate audits, financial planning, corporate audits of NGOs, taxation, and so on, so on. So, for the first time, I have been associated with an academy on online platform. Till today, I was not available on any type of platform in online format. So the complaint of my student is always that sir आप online क्यों नहीं आते, online आके क्यों नहीं पढ़ाते. So first time exclusively with Unacademy I am associated for online teaching of mathematics, logical reasoning and statistics. So take the maximum benefit of this opportunity and join the Unacademy app today. It is a simple process. You have to go into your app store or your app store in Google and just type the Unacademy Learning app. Then install the app, easy process. Next, you have to go under the CA Foundation and Intermediate. Just click on CA Foundation and Intermediate. Next step is simple. Just go to this plus content. Next step is very simple. You just have to go to the plus content. Click on this plus content. Okay. It is very important to go for plus content. If you are not going for the plus content, you will not be able to see the special lectures of the all faculties listed on Unacademy app. So go for the plus content. Then next process is very simple. Click on get subscription button. Okay. Next you will see this, the cost of the subscription. So monthly package, you can choose monthly package, 3-month package, you can go for 3-month package, half yearly package, yearly package and 2-year package. So fees is very low. If you compare with the face-to-face classes or live classes, the fees is very low. And mind you, these fees are not only for CA Foundation, this includes both CA Foundation and CA Intermediate. CA Foundation and CA Intermediate both. So the fees is very low. You can easily afford the fees. Subscription, you can, if you take the 2-year subscription, then you can easily cover whole CA Foundation and CA Intermediate just in this fees for 2 years. And not only for the team of just CA, all the teams, all the educators listed on the platform of Unacademy app, you can access the videos of each and every educator for all foundation and intermediate. So 4 subjects for foundation, 8 subjects for intermediate, total 12 subjects, and the fees is just 18,900 if you use the code CA Rajgopal. Okay, so remember my code CA Rajgopal. You have to use the code for getting an additional discount of 10%. So after getting a discount of 10%, your fees will be 18,900 for 2-year subscription. Okay, so looking forward to see you all online on the app. We will move forward. What is mathematics? Many of you have a fear of mathematics in your mind. Why? Usually what happens is we study mathematics till 10th.
हम लोग 10th क्लास तक के मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ गैप ऑफ 2 years, 2 साल का हमारा गैप हो जाता है। यूजुअली वी डोंट ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स 11th एंड 12th इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स। सो व्हाट हैपेंस इज, इतना लंबा गैप हो जाता है, हम भूल जाते हैं, हमें आदत छूट जाती है मैथमेटिक्स सॉल्व करने की। बट द प्लस पॉइंट इज द सीए इंस्टीट्यूट हैज अलाउड टू यूज कैलकुलेटर। इंस्टीट्यूट ने हमें कैलकुलेटर यूज करना अलाउ किया है। वी कैन इजीली यूज कैलकुलेटर्स इन अवर एग्जामिनेशंस। ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है हमें, हमें बेसिक कैलकुलेटर जो हमारे आते हैं वही यूज करने हैं। ओके, सो हमें कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, सिर्फ वो साइंटिफिक नहीं होना चाहिए। सिंपल 13 और 12 डिजिट कैलकुलेटर आप कोई भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। सो आपका आधा काम तो इंस्टीट्यूट ने सॉल्व कर दिया कि आपको जो कैलकुलेशन पार्ट में इश्यूज होते थे वो तो आपको अब करने नहीं है, वो काम कौन कर लेगा, अब आपका कैलकुलेटर। सो अब करना क्या है, आपको सिर्फ समझने हैं कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है वो बेसिकली ऐसा डिजाइन किया गया है कि हमें जो हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हमें उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज सीए इंटर में भी आने वाला है और सीए फाइनल में भी आने वाला है। सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से लाना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है हमारा, ठीक है। आपके 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव है, 2 पेपर सब्जेक्टिव है, हम अभी आगे देखने ही वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने की वजह से आपके लिए बहुत आसान है कि आप लोग सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पे ही सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो क्या करना है, बेसिकली हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ऑब्वियसली हम सीए कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे माई बाप कौन है, हु इज अवर फादर। अवर फादर इज अवर इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हम पीछे देख सकते हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूट का लोगो है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट को ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है और ये गवर्न होता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ऐसे ही नहीं है कि हमने कोई बॉडी बना ली, कोई कमेटी बना ली, नहीं, एक इसका प्रॉपर एक्ट है। जैसे हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, वैसा हमारा एक सीए का भी एक्ट है। और जितने सीए है, जैसे मैं हूँ, हम सारे सीए इस एक्ट से बंधे हुए हैं। वी हैव टू फॉलो द एक्ट। सो इस एक्ट में बहुत सारी ऐसी बातें जो सीए कर सकता है, नहीं कर सकता है, कैसे सीए ने करना चाहिए, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब कुछ उस एक्ट में रिटर्न है। और अगर ये एक्ट में कोई चेंज करना है तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट अपने मन से नहीं कर सकती है, उसे प्रॉपरली पार्लियामेंट में बिल पास करवाना पड़ता है, तब जाके ही इस एक्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जैसे बाकी सारे एक्ट में होते हैं। सो रिमाइंड यू, आप भी रिमाइंड यू, स्टूडेंट्स भी इस एक्ट से बंधे हुए हैं। यू आर ऑल्सो बाइंडेड बाय दिस एक्ट। सो आप कुछ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जो इस एक्ट के अगेंस्ट में है। ओके, सो आप पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फॉलो करनी है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमारा एक ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है सीए की पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं। जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये एक सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है पूरे वर्ल्ड में। स्टेप्स काफी सिंपल है सीए के, स्टेप सिंपल है, कोर्स डिफिकल्ट है, स्टेप्स काफी सिंपल है। पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आज हम देख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सीए इंटर, ओके, एंड द लास्ट स्टेप इज सीए फाइनल। सो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 1 साल के बाद आपको इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट देने का ऑप्शन मिलता है। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप 3 साल के अंदर फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं। बीच में एक छोटा सा स्टेप और होता है, उसे हम कहते हैं आर्टिकलशिप, उसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, अब आते हैं हमारे कोर्स के ऊपर। तो हमें 4 पेपर पढ़ने हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। द फर्स्ट पेपर इज सिंपल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर इज बिजनेस लॉज, बेसिकली लॉ पोर्शन है इसमें और थोड़ा सा कम्युनिकेशन पार्ट है। थर्ड इज अवर सब्जेक्ट, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। एंड द लास्ट पोर्शन इज इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल नॉलेज। सो बेसिकली आपका पेपर 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑल 100 मार्क्स ईच, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपको 3 आवर्स मिलेंगे पहले पेपर के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। 3 आवर्स मिलेंगे इनके लिए आपको, और आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलेगा साथ साथ में, ठीक है, पेपर से पहले। यानी आपको समय लगाकर कितना मिलेगा, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, पहले 15 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट नहीं दी जाएंगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर समझना है अच्छे से, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से नहीं करना है, वो सब आपको सोचना है। क्योंकि सीए में पास होने का एक ही मंत्र है, ओनली वन वे। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये आपने समझ लिया तो आप सीए में अच्छे से पास हो जाएंगे, अच्छा स्कोर करके। अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज कर लिया एग्जाम में उन 3 आवर्स में या 2 आवर्स में, तो आपको बहुत दिक्कत होगी एग्जाम क्रैक करने में।
सो कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करने से अच्छा है, हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, पहले ये हमें डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स एंड पेपर थी मैथमेटिक्स, हमें उसके लिए 2 घंटे मिलते हैं। ओके, सिंपल है। 15 मिनट्स का टाइम इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको आंसर पता चल जाता है कि आपको क्या आंसर ए बी सी डी या कौन सा आंसर आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली इसमें 15 मिनट का टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यूज पैटर्न पे है। अब आता है पासिंग परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया पे। आपको हर पेपर में 100 में से 40 मार्क, 40 मार्क्स आपको हर एक पेपर में अरेंज करने हैं। ओके, 40 40 40 40 टोटल कितना हो जाएगा 160। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करनी है तो आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिए सब मिला करके 200 मार्क्स, दैट इज 50% ऑफ 400। कितना चाहिए आपको 50% ऑफ 400, तो आपको इन टोटल कितना चाहिए 50%, दैट इज 200 मार्क्स। ईच पेपर 40 मार्क्स और एग्रीगेट में 200 मार्क्स। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट्स में अगर मिलते हैं 60 तो लॉ में 40 मिलते चलता है। ठीक है, यहाँ मुझे मिलते हैं अगर समझ लीजिए 45 और यहाँ मुझे मिलता है 40, टोटल कितना होगा 60 + 40 100, 45 और 40 85, 185 होगा। मैं पास नहीं हो सकता, आई एम फेल। ओके, सो मुझे एटलीस्ट इस ग्रुप में भी फिर क्या करना पड़ेगा, कम से कम मुझे 100 मार्क कमाने पड़ेंगे, तब जाके ही मैं पास हो पाऊंगा। अंडरस्टूड? सो इंडिविजुअल पेपर 40 40 एंड इन एग्रीगेट इन टोटल हमें चाहिए कितने 200। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं हम समझ लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर डेवलप करेंगे कि हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग अगर है, हमें फॉर्मूले अच्छे से याद है, फॉर्मूले समझते हैं, फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, उसका मतलब क्या है, हम उसे यूज क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझता है अच्छे से, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं विथ क्वेश्चंस, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विथ मॉड्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको होमवर्क दिया जाएगा काफी सारा, आपको वो होमवर्क करना है प्रैक्टिस के लिए, वो करना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप मैथमेटिक्स में पास नहीं हो पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। मैं स्कोरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में बेसिक्स सबसे पहले यही है कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ऑन डेली बेसिस। यू कैन नॉट अवॉइड मैथमेटिक्स ऑन डेली बेसिस, आपको डेली मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल आईसीआई क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले कहा हम पूरे कवर करने वाले हैं अच्छे से डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, हम पूरा रिवाइज करेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं पूरा रिवाइज होने वाला है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउट सॉल्विंग है हमारा, हम लाइव डाउट सॉल्विंग करने वाले हैं। आपके जो आपके डाउट्स आएंगे आप वो डाउट लाइव पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली। और कुछ हमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं जो हमें बिजनेस फाइनेंस कुछ और हमें करने हैं क्लासेस के दौरान, तो हम वो सारे टॉपिक्स उसमें कवर करने वाले हैं। वेटेज समझ लेते हैं कैसा है। जो पहला पार्ट है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, वो है रफली 40 मार्क्स के लिए, आपको दिख रहा होगा 40 मार्क्स के लिए है बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स। ठीक है, सेकंड पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग दैट इज 20 मार्क्स एंड द लास्ट पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स दैट इज 40 मार्क्स। देखिए ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है इंस्टीट्यूट का कि पार्ट ए है तो उसमें 40 मार्क्स ही आएंगे, पार्ट बी 20 आएंगे और पार्ट सी है तो पार्ट सी में 40 ही आएंगे। ऐसा कोई फिक्स नहीं है इंस्टीट्यूट का। सब मिला के 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क्स फॉर द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें से इंस्टीट्यूट ब्रेकअप यूजुअली ये करती है, ऐसा ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, 2-3 मार्क ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमें मेजरली टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड इंडाइसेस लॉगरिथम। रेशियो प्रपोर्शन आपने अपने 8th 9th और 10th के क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा ही है, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई आपने पढ़ा है जरूर से ये। उसमें हमें क्या पढ़ना है मेजरली रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और रेशियो के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रपोर्शन में फर्क क्या होता है, फिर प्रपोर्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मीन प्रपोर्शन वगैरह ये सब देखेंगे। नेक्स्ट इंडाइसेस, तो उसमें पहले तो हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस देखने हैं पूरे, कौन से लॉज हम पढ़ने वाले हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो हम समझेंगे, फॉर्मूलेज कैसे, उसके यूज क्या है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है वो सब देखेंगे। लास्ट पार्ट इज द चैप्टर फॉर लॉगरिथम्स। लॉगरिथम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका लॉगरिथम एकदम इजी हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, लॉगरिथम रटते हैं। माइंड यू लॉगरिथम आपने अगर रटा है तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं जमने वाला है, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसका बेसिक क्या है, इंडाइसेस और लॉगरिथम। ये 2 चैप्टर आपने अगर अच्छे से क्लियरली समझ लिए हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पूरे समझ लिए हैं, तो आपका आगे
जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो आपके लिए एक केक वॉक रहेगा। सिर्फ उसके फॉर्मूले पढ़ने हैं, जो कुछ बेसिक आपने इंडाइसिस लॉगरिथम में पढ़ा है वो पूरा उठा के इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना है, आपका पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तैयार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। इक्वेशन में हमें लीनियर इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक भी है और क्यूबिक भी है, हमें तीनों इक्वेशन देखने हैं। मैट्रिसेस में बेसिक सी मैट्रिसेस का हमें बहुत डिफिकल्ट मैट्रिसेस नहीं दिया गया है, ये चैप्टर अभी नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले मैट्रिसेस नहीं था, सिर्फ इक्वेशंस था, मैट्रिसेस को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक है, हमने आगे उसके देखिए मार्क्स भी लिखे हैं एक परसेंटेज में, तो 40 मार्क्स का 5 to 10% वेटेज है, समझ लीजिए आपके फर्स्ट चैप्टर पे 40 मार्क्स का 5% कितना होगा, 2 मार्क्स। ओके, तो 2 to 4 मार्क्स का वेटेज होता है आपके फर्स्ट चैप्टर पे। ऐसा हमने हर एक का उस बाइफर्केशन आगे लिखा है कि कितना परसेंटेज वाइज ब्रेकअप हमने लिखा है, कितना वेटेज हो सकता है एक चैप्टर पे, पर माइंड यू अगेन ये कोई वेटेज फिक्स नहीं है, इंस्टीट्यूट का इसमें वेरिएशन होता रहता है। नेक्स्ट इज योर लीनियर इनइक्वालिटीज। ये भी हो सकता है टॉपिक आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो पहले, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। हमें इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे इंटर के लिए और फाइनल के लिए। जिसको इंटर और फाइनल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से स्कोर करना है, अच्छे से समझना है, तो ये चैप्टर उसके लिए बेस फाउंडेशन का काम करेगा। ऑब्वियसली उसमें एडवांस वर्जन आपको पढ़ने मिलेगा एफएम में, इंटर में और फाइनल में एसएफएम में, बट आज ये बेस रहेगा। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि मैं इस पर इंपॉर्टेंस दूंगा बहुत ज़्यादा इस चैप्टर के ऊपर, इसमें हम टाइम बहुत लगने वाला है हमें पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डे टू डे देखने मिलते हैं। हम जो ये पढ़ने वाला है आप ये रोज़ देखते हैं, आप सुनते हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर में अगर आपको आगे इंटर में और फाइनल में अच्छे स्कोर करना है तो ये चैप्टर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देख लेंगे, उसमें देखना है हमें कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस कंबाइंड भी आते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके स्टैट्स के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। आपको ये अच्छे समझा है तो आपको प्रोबेबिलिटी भी अच्छे समझेगा, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके स्टैट्स का भी एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है हम वो अच्छे से कवर कर पाएंगे, इजीली कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ये भी हो सकता है आपको उसका इंट्रोडक्शन मिला हो आपके 8, 9, 10 के सिलेबस में, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सिलेबस कम कर दी इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एपी जीपी हमें ये पढ़ना है, उसमें कुछ अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ता है, बेसिक्स है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन पूरी दी होती है क्वेश्चन में, वहां से इन्फॉर्मेशन उठानी है, फॉर्मूले पुट करनी है और आंसर निकालना है, बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट इज सेट फंक्शंस एंड रिलेशंस। ये चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत, और पुराने सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लिमिट्स भी था ओल्ड सिलेबस में, तो लिमिट्स के लिए हमें फंक्शन रिलेशन समझना बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन के भी जरूरी होता है, पर लिमिट्स के लिए ये पूरा बेस होता था। अब लिमिट हटा दिया है तो ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन समझना जरूरी है, अगर फंक्शन समझेगा तो ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमें समझेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और एक कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द मैथमेटिक्स इज बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। कॉमनली हम इसे कैलकुलस पार्ट बोलते हैं। ठीक है, टॉपिक बड़ा है, टॉपिक लेंदी है, डेप्थ में नहीं है बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू IIT JEE, वहाँ पे बहुत डेप्थ में दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। हमें सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन ही सॉल्व करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व नहीं करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व नहीं करना है, तो आपका बहुत बहुत ही बर्डन कम कर दिया इंस्टीट्यूट ने, साइन कॉस टेन कोसिकेंट ये सब हटा दिया, तो टेंशन ही खत्म हो गया अभी हमारा। हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक इक्वेशन देखने हैं, उसमें क्या पूछेंगे मेजरली इंडाइसेस का कुछ उसमें घुमाएंगे या लॉगरिथम बेसिस पे कुछ घुमाएंगे, तो आपके लिए कहानी इंस्टीट्यूट ने बहुत आसान कर दी है, आप लोग कंफर्टेबली इजीली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इजी, यहाँ तक सबको समझा है, आगे चल सकते हैं, रिव्यू करने की जरूरत है नहीं, चले आगे। ओके,
लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स का जो पार्ट है हम लोग उसको डिटेल बाद में कवर करेंगे। पहले हम आज ट्राई करते हैं कि मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर पाए, है ना, क्योंकि इसमें और हमारा टाइम चले जाएगा, हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम है। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने पहले भी कहा था आपको कि हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत से समझने वाले हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो सभी ने आपको पता है कि पहले जब साहूकार रहा करते थे तो किसान उससे लोन लिया करते थे, उधार पे पैसे लिया करते थे, और क्या करते थे कि इंसान खत्म हो गया पर उधार खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ करता था? आपको कुछ आइडिया उसके बारे में, ऐसा क्यों होता होगा कि लोग ऐसा बोलते थे कि इंसान खत्म हो गया पर उधार खत्म नहीं हुआ? तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहूकार उन्हें बेवकूफ़ बनाते थे, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूल करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो किसान इसलिए मरता था कि उसको समझ नहीं थी वो जो पैसे ले रहा है वो क्या रेट से ले रहा है। वो रेट मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, वो समझता ही नहीं था। वो जस्ट सुनता था कि इतने रेट से ब्याज लगेगा, वो पैसे उठा लेता था। एग्जाम्पल, तो आपको कहा गया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, 3% ब्याज, ओनली 3%। पर ये नहीं बताया गया कि 3% पर एनम है। समझ रहे हो? ना किसान पूछता था, ना साहूकार बताता था। जो मनी लेंडर्स होते थे वो बताते नहीं थे कि भैया 3% मंथली है। तो इंटरेस्ट भरते भरते ही क्या होता था, किसान खत्म हो जाता था, लेकिन उसका लोन खत्म नहीं हो पाता था। तो हम लोग बेसिकली चैप्टर में यही समझने वाले हैं कि मनी की वैल्यू क्या होती है। मनी की वैल्यू चेंज की होती है एज पर टाइम। क्या होती है मनी की वैल्यू? हाँ जी, को बता सकता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है? मनी की वैल्यू बोलिए। मनी की वैल्यू, अच्छा, चेंज होती है। ओके, मनी की वैल्यू चेंज होती है, कैसे चेंज होती है? चेंज हो जाती है बार बार मनी की वैल्यू। आज मेरे पास एक अगर 10 रुपए का नोट है, 10 रुपीज नोट है, सॉरी, एक मेरे पास 10 रुपए का नोट है आज की तारीख में। सिंपल एक हमारे पास 10 रुपीज नोट है, रुपी टाइप नहीं हो रहा है इसमें। ओके, एक 10 रुपीज का नोट है, एडजस्ट कर लो, 10 रुपीज का नोट है। अब आज से 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी क्या रुपीज की नोट की? नहीं, 10 रुपए नोट 10 रुपए का नोट ही रहेगा। आज भी 10 रुपए का नोट है, कल भी उस पर प्रिंट 10 रुपए रहेगा, वो 11 रुपए तो नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली? सो हाउ द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे चेंज होती है? अच्छा, इन्वेस्ट करेंगे, ओके ठीक है, इन्वेस्ट करोगे आप, इन्वेस्ट करोगे तो उससे पैसे आपके मिलेंगे, ठीक है। तो पैसे अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं कोई एक रेट से, तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या कोई रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन चेंज होगी, यस, इन्फ्लेशन से चेंज होगी। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो सर आपको पढ़ाने वाले हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ठीक है, ठीक है। और रिस्क रिटर्न, आपकी अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न ज़्यादा लगेगा, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हम उसे कहते हैं, वो हम समझेंगे डिटेल में और आगे क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मनी की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालते हैं या डाल सकते हैं। सो बेसिकली क्या हम क्या कहेंगे, मनी का परचेसिंग पावर। आज अगर ये पेन मैं दस दस रुपए में ले सकता हूँ, और अगर इन्फ्लेशन रेट 10% का है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 साल बाद 10 रुपए पे 10%, दैट इज 1 रुपी। तो इस पेन की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 साल बाद? 11 रुपए हो जाएगी। क्या हो जाएंगी इसके 1 साल बाद इसकी वैल्यू? 11 रुपए। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 11 रुपए। तो मनी की परचेसिंग पावर बढ़ गई, घट गई? द परचेसिंग पावर ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? बताइए। डिक्रीज, करेक्ट, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? पहले हम यही चीज 10 रुपए में ले सकते थे, अब हमें इसी के लिए क्या करना पड़ रहा है, 11 रुपीज पे करना पड़ा है। तो मनी की वैल्यू घट गई, और इस कमोडिटी की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। इस कमोडिटी की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है। समझे? सो अगर कोई चीज महंगी हो रही है मतलब मनी की वैल्यू घट रही है, गिर रही है, डिक्रीज हो रही है, और जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। इजी टू अंडरस्टैंड? सो मनी की वैल्यू घटती है या बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। समझा आपको सबको ये?
कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? इजी, आगे चल सकते हैं। ओके, सो पहले हम देखेंगे उसके कुछ पार्ट्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसे हम कहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपल इंटरेस्ट, एंड सेकेंड पार्ट है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल, आपने एक अमाउंट बोरो किया है, उस पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। से आपने 100 रुपीज बोरो किए हैं एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years, तो क्या होगा? कितना इंटरेस्ट आएगा? कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपल, 100 रुपीज को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 साल के लिए तो 2 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा? 100 इंटू 10%। कैलकुलेटर लीजिए आपका, उसमें 100 टाइप कीजिए, 100 इंटू 10% इंटू 2 आता है वो 20 रुपीज। तो हमने कितना इंटरेस्ट कमाया उसमें? बेसिकली हमने कमाया 20 रुपीज का इंटरेस्ट। इजी, सिंपल था। इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूले में, इसी को कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले में। क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी। क्या है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आई टी। क्या होता है पी, क्या होता है आई, क्या होता है टी? हाँ जी, को बताएगा। पी आई टी, पी आई टी P is for principal, P is for प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट बोरो किया है, या जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट बोरोड और अमाउंट इन्वेस्टेड, वो क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड, ये क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। समझा यहाँ तक के? नेक्स्ट आई, और उसको एक और लिखते हैं फॉर्मूले के लिए, पी आर टी भी लिखते हैं। बहुत से लोग क्या लिखते हैं उसे? पी आर टी भी लिखते हैं। आर हो या आई हो, दोनों की बात एक ही होता है। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आई भी क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। फिर नेक्स्ट है आर, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट से आपने अमाउंट बोरो किया है। एंड लास्ट टी इज टाइम पीरियड इन ईयर्स। ठीक है, सो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? इसको अच्छे से लिख के देखते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है, पी आई टी, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। ठीक है, यहाँ तक सिंपल, सबको समझाया तक के? सिंपल फॉर्मूला पी आई टी, सिंपल इंटरेस्ट एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, इजी टू अंडरस्टूड? समझा सबको? चले आगे, कैन वी गो अहेड? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं इसके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस करते हैं इसके सिंपल इंटरेस्ट के। पहला क्वेश्चन आपको दिख सकता है यहाँ पे, एक बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,500 फॉर 5 years at 11% per annum, परसेंट पर एनम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, परसेंट पर एनम। ठीक है, एक साल का रेट क्या आपके लिए? 11%। तो हमारा फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? हम देखा अभी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना दिया आपको, ये प्रिंसिपल है जो आपने अमाउंट बोरो किया है। कितना बोरो किया आपने, 5500 का आपका हो गया प्रिंसिपल। रेट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, और टाइम पीरियड कितना हो गया 5 ईयर्स, सो हो गया 5, है ना। अब हम देखेंगे 11% को आप कैसे लिखेंगे। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल 5500 टाइप कीजिए कैलकुलेटर पे, 5500 इंटू 11% इंटू 5, कितना आ रहा है वो देखिए, बताइए आंसर, मुझे कोई बताएगा आंसर। हाँ जी बोलिए, कमेंट में टाइप कीजिए आंसर क्या है। यस 600, एक बार चेक कर लो फिर से, 5500 इंटू 11% इंटू 5, कितना आ रहा है 600 नहीं, 5500 इंटू 11% इंटू 5, हाँ जी 3025 इज द राइट आंसर। 3025 इज द राइट आंसर। ओके, अगर आपको कैलकुलेटर पे नहीं कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं पूरा, तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, 5500 इंटू 11/100, सबको पता है ना परसेंटेज कैसे लिखते हैं हम लोग, इंटू 11 डिवाइड बाय क्या करेंगे उसको 100, ये क्या हो गया परसेंटेज का लिखने तरीका हो गया। तो उसका मतलब क्या होता है वो 0.11, क्या होता है 0.11। तो सिंपली याद कर लीजिए, अगर 11% है तो क्या होता है वो 0.11, अगर 12% है तो क्या होगा वो 0.12, सिंपल है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर में जब टाइप कर रहे हो तो आपको परसेंटेज दबाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 5500 इंटू 11 इंटू 0.11 इंटू 5 कर सकते हो। तो 3025 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी 3025। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5500 फॉर 5 years at 11% per annum is 5025। ओके, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at same rate of interest for 6 years and that for 9 years? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें इजीली इसको ब्रेक करते हैं वर्ड बाय वर्ड। देखिए क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा है पहली बात तो, उसने सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पूछा है, क्या पूछा उसने, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट, कोई एक अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट कमाया है, एट द सेम रेट, एक ही रेट से कमाया है, फॉर 6 years एंड 9 years। तो बेसिकली बोला क्या है कि हमने अगर कोई एक अमाउंट पे सेम रेट से 6 साल के लिए इंटरेस्ट कमाया तो इंटरेस्ट का कितना आएगा, और 9 साल के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा, उसका रेशियो निकालो। उसका क्या निकालो, रेशियो निकालो। प्लीज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years एंड 9 years। तो पहले मुझे बताइए कि 6 साल के लिए कोई एक अमाउंट पे से एक्स अमाउंट पे हमने अगर कोई एक रेट से वाई रेट से हमने इंटरेस्ट कमाया 6 साल के लिए, तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1, SI1 दे रहे हैं हम उसको। SI2 क्या होगा हमारा, उसी अमाउंट पे उसी रेट से हमने 9 साल के लिए इंटरेस्ट कमाया, समझा क्या हुआ। SI1 क्या था, एक अमाउंट पे कोई एक रेट से हमने 6 साल के लिए इंटरेस्ट कमाया। SI2 क्या था, हमने उसी अमाउंट पे उसी रेट से 9 साल के लिए इंटरेस्ट कमाया, और बोला क्या इनका रेशियो निकालो। क्या निकालने बोला है, रेशियो। तो सिंपली रेशियो कैसे निकालेंगे, इसको कर दो डिवाइड, क्या कर दो इसको डिवाइड, तो क्या होगा SI1 अपॉन SI2 इक्वल टू x इंटू वाई परसेंट इंटू 6 डिवाइडेड बाय x इंटू वाई परसेंट इंटू 9। ये कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल, y परसेंट कैंसिल, 6 अपॉन 9, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो क्या बचेगा रेशियो फाइनली हमारे पास 2:3 या 2/3। समझा सबको यहाँ तक क्या हुआ, इजी है, ठीक है। तो SI1 अपॉन SI2 क्या हो गया 2/3, अंडरस्टूड। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखते हैं 1:3 नहीं, 1:4 नहीं, 2:3 और नन ऑफ दिस, तो 2:3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी टिक करना है आपको, ठीक है।
ऑप्शन सी 2:3. गुड क्वेश्चन. अरुण एंड रामू आर फ्रेंड्स. अरुण और रामू दोस्त है, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, सगे सगे दोस्त है, दोनों बचपन से चड्डी बड़ी है दोनों. अरुण बोरोड सम ऑफ रुपीज 400. अरुण ने बोला यार थोड़ी मदद कर दे रामू को, 400 रुपए उधारी पे दे एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम रामू. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? सिर्फ 5% पे. तो रामू बहुत दिलदार आदमी है, उसने 400 रुपए दे दिया उसको सिर्फ 5% के रेट से. अब क्या हुआ आगे? ही रिटर्न्स द अमाउंट. अब ये ही कौन है पहले बात बताया नहीं, देखते हैं कौन है. ही रिटर्न्स द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. अब यहाँ पे समझ रहा है ही मतलब कौन है? ये होना चाहिए अरुण. ठीक है, कौन है ये? अरुण. क्योंकि पैसे किसने लिए थे? अरुण ने लिए थे. तो प्रिंसिपल कितना हो गया अरुण के लिए? ये हो गया उसके लिए प्रिंसिपल पी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%. ये हो गया उसके लिए आई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और टी कितना हो गया? टाइम पीरियड 2 साल. उसने 2 साल के लिए बोरो किया था टी. ठीक है, तो पी आई टी प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड टाइम 400 इंटू 5% इंटू 2 years. ये क्या हो गया? उसका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 400 इंटू 5% या 400 इंटू 0.05 इंटू 2. कितना रहा बताइए मुझे? सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 400 इंटू 5% इंटू 2, वो आ रहा है 40 रुपीज. तो उसने 2 साल बाद पूरा अमाउंट वापस कर दिया विथ प्रिंसिपल. तो कितना वापस किया होगा? प्रिंसिपल के लिए 400 रुपए और 40 रुपए का के लिए इंटरेस्ट के लिए. तो टोटल उसने कितने वापस किया होगा? 440 टोटल उसने वापस किए होंगे. ही रिटर्न द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. यहां तक सिंपल है. 400 प्लस 40 इज इक्वल टू 440. ये उसने पैसा वापस किया. अब आगे देखते हैं कहानी. रामू रिटर्न्स टू अरुण 2% ऑफ द टोटल अमाउंट रिटर्न. रामू जैसे मैंने पहले कहा बहुत दिलदार आदमी है. उसने क्या बोला अरुण को? भाई दोस्त सुन, तूने जो मेरे को पैसे वापस किया है टोटल पैसे जो वापस किया है, टोटल पैसे जो तूने मुझे वापस किया है उसका मैं तेरे को 2% वापस दे देता हूँ भाई, मुझे तेरे से और नहीं कमाना है. सो हाउ मच डिड अरुण रिसीव? रामू ने जो पैसे उसको वापस किए वो कितने किए? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो. अरुण और रामू दोस्त है. अरुण ने रामू से 400 रुपीज बोरो किए हैं एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. उसने उसको पूरे पैसे वापस कर दिए रामू को, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के. ऑब्वियसली इंटरेस्ट वापस नहीं करेगा, प्रिंसिपल भी देना पड़ेगा. तो 400 रुपए जो उसने लिए थे उधार वो वापस किए प्लस 40 रुपीज फॉर द इंटरेस्ट. पर रामू को दया आ गई. रामू ने क्या कहा? भाई तूने जो मुझे पैसे दिए हैं उसका तो इतना अमाउंट वापस ले भी ले. तो उसने क्या कर दिया? उसको उसका 2% वापस कर दिया, 2% ऑफ द टोटल अमाउंट. तो टोटल अमाउंट कितना वापस किया था उसने? अरुण ने इतना वापस किया था. तो उसने क्या किया? 440, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है, 440 इंटू 2% करिए मल्टीप्लाई. कितना हो रहा है? 440 इंटू 2. देखिए आपके कैलकुलेटर में साइन होगा परसेंटेज का, वो दबाइए. 440 इंटू 2% इज 8.8 रुपीज. 8.8 रुपीज. सो कितने वापस किया रामू ने? उसने किया 8.8 रुपीज वापस किया है. सो ऑप्शन सी अगेन 8.8. ऑप्शन सी आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ. हाँ जी दिख रहा है अभी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी 8.8 रुपीज. ओके, इजी. चल सकते आगे? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी. क्वेश्चन अच्छा था ये वाला. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते कई बार. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. द सम रिक्वायर्ड टू अर्न a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum simple interest. जो लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो लोग इसमें गड़बड़ करेंगे. क्या पूछा क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ो फिर से. द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट. मंथली इंटरेस्ट देखिए बहुत से लोग वर्ड भूल जाते हैं. मंथली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1200. यहाँ पे इस बार क्या किया उसने? इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है कि आपको कितना इंटरेस्ट कमाना है पहले से बता दिया है. रेट भी दे दिया है कि क्या रेट से कमाना है.
और पर एनम बोल दिया तो आपको एक साल में कमाना है, तो द सम रिक्वायर्ड, कितने सम पे कमाओगे ये पूछा है। मतलब क्या पूछा है उसने, बताइए क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है उसने, प्रिंसिपल, कितना सम इन्वेस्ट करूं, कितना सम इन्वेस्ट करूं या लेंड करूं ताकि मुझे मंथली 1200 रुपए का इंटरेस्ट मिले, क्या रेट से, 18% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से मिले। अब ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, हम दोनों तरीके देख लेते हैं, आपको जो सूटेबल हो आप वो सॉल्व कर लेना। एक तरीका है, ये जो 18% है ये पर एनम बेसिस पे है, और जो 1200 है वो मंथली बेसिस पे है, ये है मंथली और ये है एनुअली। तो दोनों का बेस ऑब्वियसली अलग अलग है, तो हमें दोनों का बेस पहले सेम करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन है कि आप या तो इसको एनुअली कन्वर्ट कीजिए या इसको 18% को मंथली कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले करते हैं 1200 मंथली को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करें सबको पता है ना, अगर एक महीने का 1200 रुपए है तो 12 महीने का कितना, अगर 1 मंथ इंटरेस्ट 1200 है तो 12 मंथ का कितना, क्वेश्चन मार्क, करेंगे इसको क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया, अगर x मान लिया तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1200 इक्वल टू 1 इंटू एक्स, यानी x कितना हो गया हमारा, कितना आ गया x, 12 12 जा 14,000 1400, 12 12 जा 14 144, तो 12 इंटू 1200 कम्स टू 14,400। समझा हमने क्या किया, ये इजी था। हमने क्या किया, बेसिकली हमने कन्वर्ट किए हैं मंथली इंटरेस्ट को ईयरली इंटरेस्ट में, हमने क्या किया है, कन्वर्ट किए हैं मंथली इंटरेस्ट को ईयरली इंटरेस्ट में, इजी, समझा यहाँ तक के। नेक्स्ट क्या है फिर, अब हमें निकालना क्या, ये तो इंटरेस्ट आ गया साल का, क्या रेट से कमा रहे हैं हम इंटरेस्ट, 18% से, है ना, और कितना कमा रहे हैं, 14,400, सो 14,400 इज इक्वल टू 1 ईयर, सॉरी प्रिंसिपल जो हमें निकालना है पता नहीं, पी इनटू, हमने क्या पता है रेट ऑफ, पता है रेट कितना है 18%, इनटू टाइम पीरियड कितना है 1 साल, 1 ईयर, सो 18% इंटू 1 कितना हो जाएगा 18%, सो ये हो गया P इंटू 18% इक्वल टू 14,400। अब करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे, उसको वहां भेजेंगे, डिवाइड करते हैं, चलिए क्या है हमारे पास, 14,400 इज इक्वल टू P इंटू 18%, मैं 18% को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा P इंटू 0.18, ऐसा हो जाएगा, यहाँ तक सबको समझाए, 18/100 0.18 होता है, नहीं जमा होगा तो कैलकुलेटर उठाओ, 18/100 दबाओ, क्या हो जाएगा वो 0.18, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है 14,400। अब क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आगे डिवाइड हो जाएगा, सबको पता है रूल, ये 14,400 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, 14,400 डिवाइड बाय 0.18 इक्वल्स टू P, तो डिवाइड करो 14,400 डिवाइडेड बाय 0.18 कितना हो रहा है, तो P की वैल्यू कितनी आ रही बताओ मुझे, 14,400 डिवाइड बाय 0.8 कम्स टू 80,000। देखते हैं हमारे पास आंसर है क्या, 50,000 नो, 60,000 नो, यस, सी ऑप्शन इज द 80,000, तो ऑप्शन सी 80,000। फिर से रिवाइज करना है, ओके ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, द सम रिक्वायर्ड, द सम रिक्वायर्ड, इसको वापस अच्छे से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन को फ्रेशली, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको मंथली को कन्वर्ट किया ईयरली में, वो आ गया 14,400, ठीक है, फिर हमने उसको डिवाइड किया 18% से, हमारा आंसर आ गया कितना 80,000, ठीक है। अब सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड तरीके में क्या है, अगर ये 18% पर एनम है, सो पर मंथ कितना होगा, तो क्या करेंगे सिंपल, अगर ये साल भर का है तो एक महीना कितना, साल में कितने महीने होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 18 डिवाइड बाई 12, 1.5% पर मंथ, 1.5%
पर मंथ हो गया वो, समझा सबको यहाँ तक के? 1.5% क्या हो गया वो, पर मंथ। तो वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, 1200 इज इक्वल टू पी इंटू 1.5% इंटू टाइम पीरियड था 1 ईयर, ठीक है। तो 1200 इज इक्वल टू पी इंटू 1.5%, सो 1200 डिवाइडेड बाय 1.5% इक्वल टू पी। कितना आ रहा है पी बताओ? सेम आ रहा है अगेन 80,000। कितना आ रहा है पी बताइए जल्दी से। 80,000 आ रहा है, कैलकुलेट करो। 1200 डिवाइडेड बाय 1.5%, सॉरी 18 डिवाइड बाय 12, 1.5, ठीक है। सो 80,000 is the principal on which we would borrow the money or lend the money so that we could earn the interest of 1200 per month at the rate of 18% per annum. Understood? ठीक है। तो एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब वो अमाउंट नहीं जो हमारा लिखा था अमाउंट, सादा अमाउंट, ये हमारा टेक्निकल फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, आपने अमाउंट आपने कुछ एक रुपीज़ बोरो किए, से आपने 10,000 रुपीज़ बोरो किए और 10% के रेट से बोरो किए, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट पे करोगे आप? 10,000 पे 10% से एक साल के लिए कितना हो जाएगा वो? 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब आप पैसे वापस करोगे एक साल बाद तो कितना करोगे? ये दोगे साथ में ये भी दोगे, है ना। तो आपने क्या क्या दिया? प्रिंसिपल दिया प्लस इंटरेस्ट दिया, है ना। तो अमाउंट का वही फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला भी ऐड कर लो, ये फॉर्मूला ऐड कर लो, ठीक है। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोग को। अभी आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है, आज से ही आपको बनानी है फॉर्मूला कॉपी या फॉर्मूला शीट। हम जितने फॉर्मूले, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं वो सारे आपको डेली बेसिस पे ऐड करना है और डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली, यस। और अगर आप डेली पढ़ेंगे तो एग्जाम के दिन तक के आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं पास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा स्कोर करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये फॉलो किया तो मैथमेटिक्स बेसिकली प्रैक्टिस और रिवीजन का खेल है। रिवीजन कैसे करोगे? हर रोज पूरा रिवीजन तो कर नहीं सकते हो, तो रोज क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, रोज पढ़ना है। कब पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले, है ना। रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले नहीं, तो सोने से पहले और उठने के बाद, रोज, डेली, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्मूले आपको अपने फॉर्मूला शीट में ऐड करने हैं और डेली रिवाइज करना है, सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ याद नहीं करना है, रिवाइज करना है सिर्फ। अगर आपने डेली रिवाइज भी किया सिर्फ तो ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगी पूरे फॉर्मूले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। तो हमने तीन तीन टर्म है हमारे पास बेसिकली, एक है इंटरेस्ट, एक है प्रिंसिपल, एक है अमाउंट। समझा सबको ये? ठीक है, इजी, ठीक है क्या? आगे चले? चलिए तो अभी हम देखते हैं हम लोग क्विज, ठीक है। हमारा अभी आ गया है क्विज टाइम। हम थोड़े से क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्विज टाइम में। माइंड यू इसमें टाइमर लगा हुआ है, आपको उस टाइम के अंदर ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप उस टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो आप समझ लीजिए आपको एग्जाम में या तो मार्क्स नहीं मिलेंगे या आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ के अच्छे से तो आंसर इजीली आ जाएगा। यहाँ पे बाय कर लीजिएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3,
2 1 स्टॉप। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ द रेट इंक्रीजेस बाय 2%, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इंक्रीजेस बाय 108। मैंने क्या किया है, मैंने अगर मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले, मैंने उसे 2% से इंक्रीज कर लिया है अगर, तो मेरा सम है, जो मेरा टोटल इंटरेस्ट है, वो कितने से बढ़ जाता है? 108 रुपीज से बढ़ जाता है। 2% से इंक्रीज करने के पीछे मेरा रेट क्या हो जाता है? 108 से बढ़ जाता है। अगर इफ द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 2 years, if the time period increases by 2 years, the simple interest on the same sum increases by 180। बट अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले टाइम पीरियड बढ़ा दिया, तो मेरा क्या होता है? वही सम क्या हो जाता है? 180 रुपए से बढ़ जाता है। देखिए, आपको इंटरेस्ट कमाना, क्या इंटरेस्ट कैसे कमाएंगे हम लोग? ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा या टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सेम सम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप बोलते हैं मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा कमाना है, तो या तो रेट ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट करो या ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो। सो उसने पहले केस में क्या किया? उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। सेकंड केस में क्या किया? उसने टाइम पीरियड बढ़ाया और बोल दिया कि इतने इंक्रीज करने से मेरा इतना इंक्रीज हो गया। सो मेरा सम कितना है, जो मैंने प्रिंसिपल बोरो किया है, वो कितना है, उसने वो पूछा है। इजी है। सो क्या करेंगे? सिंपल अगर 108 रुपए जो है वो 2% है। कैसे 2% है? क्योंकि 2% इंक्रीज करने से मेरा 108 से इंटरेस्ट बढ़ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो 2% एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ वो कितना है? 108 है। तो जो 2% है, जो 2% है, इट इज इक्वल टू 108%। समझ रहा है? तो मेरा सम कितना होगा? तो क्या करना है सिंपल आपको, 108 डिवाइडेड बाय 2%। 108 डिवाइडेड बाय 2%। 108 डिवाइडेड बाय 2% कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 5400। तो आपका आंसर तो वैसे ही आ गया, सेकंड पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है अभी हमको। तो ऑब्जेक्टिव वही करना पड़ता है आपको टाइम पीरियड कम मिलता है बहुत ज़्यादा, तो आपका करना है आंसर निकालना है जल्दी से। पूरा क्वेश्चन जरूरी नहीं हर बार सॉल्व करना पड़े। आंसर अगर आ गया है टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है। सो आपको क्या करना है, बेसिकली समझा क्या किया हमने? अगर 2% 108 बराबर है तो 100 कितना? 2% अगर 108 बराबर है, सो 100% कितना? 108 is equivalent to 2%. So what will be equivalent to 100%? So 108 into 100% divided by 2% comes to 5400। comes to 5400। लिख लीजिए इसको, जिसको लिखना है लिख लीजिए, जल्दी जल्दी छापिए। सबको आ गया? ठीक है, हो गया लिख के, चले आगे। ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। हम लोग बचा हुआ पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा टॉपिक में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और देखने हैं अभी। हम ये पूरे क्वेश्चंस कल कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को कल हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते सबको यही कहूँगा, आप सबको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और याद से उस बेल आइकन को दबाना है, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको मेरे वीडियोस देखने हो, मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने हो या फाउंडेशन को भी वीडियो देखने हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से वीडियो देख के आप अच्छे से मार्क्स उसमें अर्न कर पाए। ठीक है। जस्ट सीए आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको इजीली चैनल मिल जाएगा। जस्ट सीए चैनल से आपको सर्च करना है और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना है। ओके। एंड लास्टली अगेन मैं आपको याद दिला दूं, जब भी आप सब्सक्रिप्शन कोड लेंगे, यूज द कोड CA Rajgopal to get an additional discount of 10%. So goodbye for today, all the best, we will meet again very soon, see you soon, thank you.